So this is the speaking test of International English Language Testing System taking place on 22nd of March 2023 at Hotel Hilton in Chandigarh. The candidate name is Khushpreet Kaur. The candidate ID is 1929698. The examiner name is Ashwini Saini. Examiner ID is 2196548. The test is in 3 sections. I'll begin with the introductory part. Firstly, tell me your full name. My full name is Khushpreet Kaur. खुशदीप और खुशप्रीत? खुशप्रीत कौर. और पहले तो खुशदीप बोला आपने अभी. नो नो सर, खुशप्रीत. मुझे लगा खुशदीप बोला आपने. चलिए. No. Anyways, can I see your ID? Yes, sure, sir. Here it is. You. Are you a student or you work, Khushpreet? Sir, I am a student. I have done my graduation from Punjab University, Patiala. Now I'll ask you some questions about your personality. Okay. So are you an introvert person or an extrovert? To be honest, I am an extrovert person. I love to meet new people on daily basis. So, to answer your question, I am a very sociable person. So what do you think about it? Is it good or bad to be an extrovert? According to me, I think it's a good trait to being an extrovert person, because people come to know about various kind of things, like how they can communicate with each other, and how they can handle the situation in a society. So I think this is the good thing for everyone, but there are some demerits of extrovert. Sometimes people are hurted by other persons. Tell me what good quality that you have which other people like in you. Well, there are a number of qualities. I am a punctual person. I am a philanthropist person, which One so quality that people admire. okay. Sir, I have a helping nature, so I love help to other people. So this quality always admired by other people. Last time, who did you help and how? I remember 2 weeks ago, there was a little child, and I helped her to crossing a road because she was alone. So didn't you wonder what a little child was doing on road without any adult? I think sir, she was playing in the garden, but she was there for she was going somewhere. I don't know where she was going, but she was alone. No, you made it up. It was not true. You did not help any girl in crossing the road. No, sir, I helped really, but I don't know where she was going. But you know, in the village side, some small children just roaming here and there. So Okay, this was the situation. that's good. All right. Tell me one weakness that you want to remove. Okay. Well, sir, I have sometimes I get angry with the short period of time. So I think this is the weakness I want to remove in myself. And last time, when did it happen? Last time, when my brother, uh, I have a fighting with my brother. So on that time, this happened with me. I got so much frustrated, and I was fighting a lot with him. So that's why. Did you hit him in the face? No, sir. No, this. I just. It was talking. I was just. It was a verbal spat. Yes, sir. Verbal spat. It was not physical spat. Okay, sir.
So did you hit your brother sometime in past? Yes, sir. Sometimes when he got something wrong, on that time I hit. You slap. Yes, sir. Okay. All right. So this is the end of part one. Let's move on to part two, which is a cue card. I'll show the statement of the cue card on screen. You're supposed to make notes if you have a notebook with you, and then you have to speak from 1 to 2 minutes. Okay, Khushpreet? Okay. So your cue card is on the screen. Here it is. Describe an occasion you got up extremely early. Describe an occasion you got up extremely early in morning. When it happened, why you woke up early, and how you felt. Okay, Kushpreet, speak up now. Okay, sir. Well, to be honest, I'm a early bird. I love to get up early in the morning. So I usually get up around 5 o'clock, and do some yoga and other physical exercise. But here I would like to talk about such time when I have to got up such an early, around 3 o'clock in the morning. Actually, 2 months ago, there was my brother's birthday, and I wanted to give him a surprise party, as I never arranged any birthday party before. So it was a very Herculean task for me. But I took help one of my friends, Aman, because she has a gifted hand in organization. So with the assistance of my friend, I arranged that party. So I got up early because I had to arrange all the things, like I had to uh, decorate my brother's room, and all other things which are very essential for the party to make it grand. First of all, we both, me and my friend, went to the market and purchased some decorating materials such as balloons, buntings, and candles, and all that. After that, we adorned my brother's room with these type of material. Apart from this, it was, as it was very it was my first experience, and I also baked a cake for my brother. It was a 3-layer heart shaped cake. So when my brother came to home, and he was very bored from the blue, because he didn't expect such a birthday party from me. If I talk about my feelings, I felt over the moon. So because this was the first time when I gave such a surprise party to my brother. So I got a lot of appreciations from my friends and family members. So this was the time when I had to get up early in the morning. Good. So as we are talking about waking up early, what are the certain benefits for those people who wake up early?
Well, there are a number of benefits of getting up early in the morning. First of all, people always keep their body fit as a fiddle if they get up early in the morning, because they have enough time to do some physical exercise or activities. Apart from this, they can make their day more productive when they get up early in the morning, because they can complete their household chores before going to their work or study. Hmm. All right. Why is it difficult for people to wake up early in the morning these days, especially for the youngsters? Well, nowadays youngsters squander their lot of time on social media, and I think this is the main reason due to which they always glued with the technological gadgets, and they unable they unable to get up early in the morning, because they see a lot of things on social media till late night. What suggestion can you give to youngsters so that they can get rid of this problem? Well, first of all, people should, or a youngster should make uh, their plan, make their plan the things ahead of time, so that they don't waste their time. Apart from this, they should set a specific time when they have to install scroll a Insta or other social apps. They should not spend the whole time on these type of gadgets. Apart from this, they set a alarm and install a good habits in themselves. So these kind of things help them to get up early in the morning. ओके खुशप्रीत, दिस इज द एंड ऑफ योर स्पीकिंग टेस्ट. खुशप्रीत, बहुत बढ़िया स्पीकिंग है आपकी, और ये मैं नहीं कह रहा, तो आईडीपी वाले भी कह रहे हैं. दे गेव यू बैंड 6.5, राइट? यस सर. हालांकि और क्षमताएं हैं आपकी, यू कैन डू बेटर इन दैट. इफ आई टॉक अबाउट योर वोकैबुलरी, व्हेन यू आर स्पीकिंग वोकैबुलरी इज गुड. सोशेबल, ट्रेट, कम टू नो, रोम, अर्ली बर्ड, हरकुलियन टास्क, इडियम्स यूज कर रहे हो, ओवर द मून, फिट एज फिडल, अडोन, अप्रिसिएशन, प्रोडक्टिव, हाउस होल्ड चोर्स, स्क्वेंडर, ग्लूड. बहुत बढ़िया. आप नेचुरल इनको बोल रहे थे. पहले अच्छी बातें बता रहा हूँ, अभी थोड़ी नेगेटिव वाली बताऊंगा, चिंता मत करो. आप कोहेसिव डिवाइस भी यूज करते हो अपार्ट फ्रॉम दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके की चीजें भी आई, बट थोड़े से एडवांस वाले यूज नहीं किया आपने, जैसे कि इवन इफ, इवन दो, नेवरदलेस, हाउएवर, राइट? इस तरह वाले कोई नहीं आए. और ग्रामेटिकल रेंज की बात करूं, वो थोड़ी सीमित है आपकी. नॉट ओनली बट ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम दिस, नाइदर नोर, आइदर नोर, टेंड की ग्रामर, गोइंग टू की ग्रामर, यूज टू की ग्रामर, है ना, पैसिव सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये थोड़े कम थे, जिसकी वजह से शायद आपको 7 बैंड नहीं मिला लास्ट टाइम. आपकी ग्रामर की एक्यूरेसी ठीक है, रेंज कम है. एक्यूरेसी ठीक है, रेंज कम है. वोकैब की एक्यूरेसी भी ठीक है और रेंज भी ठीक है. ठीक है. प्रोनाउंसिएशन, बीइंग पंजाबी, थोड़ा हार्श है. उदाहरण के लिए, डोंट स्पेंड, डोंट स्पेंड, है ना, तो हम थोड़ा हार्श बोलते हैं. दे डोंट, आई डोंट, वो जब अलग से ही डोंट, जैसे थप्पड़ मार रहे हो, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट नो, पीपल डोंट डू, पीपल डोंट, यंगस्टर्स डोंट, देमसेल्व्स, देमसेल्व्स. लाइट होना चाहिए, थोड़ा सा टंग को लाइट करना पड़ेगा. प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हार्श है, जो कि बहुत, मतलब थोड़ा वक्त लगेगा आपको इसको ठीक करने में, ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ठीक करने में. कौन सा एस्पेक्ट बचा? फ्लुएंसी, फ्लुएंट आप हो, उसमें कोई कमी नहीं है. कहीं कहीं थोड़ा सा मुझे लगा कि आप है ना थोड़ा आर्टिफिशियल बोल रहे हो, थोड़ा नेचुरल बोल सकते हो. और एक चीज ठीक करो, वो है रेट ऑफ स्पीच. आप जल्दी बोलते हो, क्यों बोलना है जल्दी? मतलब क्या जल्दी बोलने का स्कोर मिलता है खुशप्रीत? नहीं नो मिलता. सर, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਰ. ਮੈਂ ਸਪੀਡ फड़ लेनी है जिधर जे स्पीड ਪੰਜਾਬੀ ਚ नहीं लिखनी पढ़नी, है. क्योंकि स्पीड पढ़ने का स्कोर नहीं है, अच्छा बोलने का स्कोर है. स्लो बोलोगे, ज्यादा बेहतर वर्ड यूज कर पाओगे, ज्यादा बेहतर ग्रामर यूज कर पाओगे, ज्यादा इंपैक्ट छोड़ पाओगे, तो और अच्छा स्कोर मिलेगा. तो आप थोड़ा जल्दी बोल रहे थे. अच्छी बात है कि जल्दी बोल रहे थे और अच्छा भी बोल रहे थे, एक्यूरेट भी बोल रहे थे, लेकिन जल्दी बोलने को कोई मेडल नहीं मिलता.
तो अब देखो, मैं दो तरह से बोल के दिखाऊंगा। इंग्लिश तो मुझे आती है, जल्दी बोल सकता हूं मैं, लेकिन not necessarily I speak fast, because I am into teaching, and when I teach my students, I want my student to understand me 100%. That's why I deliberately slow down my rate of speech and I speak like this as I am speaking to you right now. अभी जो मैंने आपको बात बोली कितना आराम से बोली, अब मैं इसको बोलने को जल्दी बोल सकता हूँ। I know English language. When I teach, I can speak fast, but I want to ensure that my students understand everything whatever I say. तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, Yes, समझ sir. रहे हो? Yes. तो मैंने आपको क्या सलाह दी? आराम से बोलो, Okay, स्पीक sir. स्लो, और वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं करते आप, इमोशंस। अरे कहीं पे कोई ह्यूमर ह्यूमर डाल रहे हो तो चेहरे पे स्माइल आए, कहीं पे सीरियस बात कर रहे हो तो चेहरा सीरियस हो जाए। तो चेहरे के हाव भाव आपकी बात के हिसाब से बदलने चाहिए, है ना? आप अपने ब्रदर के बर्थडे की पार्टी की बात कर रहे थे, यू मेड सम अरेंजमेंट्स, यू अडोन द एंटायर रूम, यू टुक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड, तो वहां पे थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल रखो, उसके हिसाब से बात करो। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं घर वाले? ਸਰ ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਚੀਜ਼। हाँ, ਉਹ मेरे को आ ਜਦੋਂ ਮੈਂ गई। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਸਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। तो आपकी माता जी सीधा करेगी आपको फिर। ठीक है, चलो। हाँ जी। तो ये सलाह मैं दे रहा हूं, ये Okay. चीज मैं अभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ फाइल्स के लिए नहीं, फॉर योर एंटायर लाइफ। और Yes, मैं sir. आप में क्वालिटीज देख रहा हूँ बहुत अच्छी, आप में क्वालिटीज ऐसी हैं, यू कैन बी अ वेरी गुड टीचर एज वेल। आप बड़े अच्छे अध्यापक भी बन सकते हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपके अंदर मैच्योरिटी है, आपके अंदर वो ट्रेड्स मैंने ऑब्जर्व की हैं कि अगर आप एक बार अपनी ये कमियां दूर करके 7 7.5 बैंड ले लोगे ना आइल्स में, फाइलिंग Yes, sir. पैरेलल चलती रहेगी, आप आराम से 4 5 6 7 महीने टीचिंग करना, इतने में आपका वीजा आ जाएगा, अपना फ्लाई करके जाना, कनाडा निकल जाना। तो आपका फ्यूचर मुझे ब्राइट लग रहा है। इसको सिर्फ एक ही बंदा बर्बाद कर सकता है, वो हो आप खुद। Yes, sir. अगर बर्बाद करने लगोगे आप खुद करोगे, पर रुकना मत, थकना मत। एग्जाम आप दे सकते हो, 1 महीने के अंदर दे सकते हो। स्पीकिंग वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हो राइटिंग में उन्होंने आपको 7 बैंड दिया था, तो कोई मतलब तुक्का तो लगा नहीं होगा, है ना? Yes. 7 बैंड दिया है तो लेवल 7 का होगा, तभी आया होगा 7 बैंड। तो हम्म। लिसनिंग मुझे कम लग रहा है, उस हिसाब से आपका 6.5 आया था लिसनिंग में। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਪੀਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮੈਥੋਂ ਨਾ 2 ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਆਈ ਤੇ ਈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਸੀਗੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 35 36 ਤੱਕ आ जाते चलो सी देखो, हमें speed। हमें कभी भी है ना ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी को। स्पीड फास्ट थी, स्लो थी, दिन कैसा था, पॉइंट ये है भाई, मेरी गलती थी, दैट्स द पॉइंट। मुझसे Yes. कमी रही उस दिन, मेरे से हाँ जी। स्पेलिंग गलतियां हुई हैं उस दिन, जो भी था, मेरा कंसंट्रेशन वीक हुआ, मेरे से कुछ ऑडियो मिस हुआ, तो मेरे को सुना नहीं, तो ठीक है। बट लिसनिंग ऐसा मॉड्यूल है जिसमें 8 8 8.5 बैंड भी आते हैं, तो इस बार Yes, का sir. आपका टारगेट लिसनिंग का 8 8.5 का होना चाहिए। पिछली बार वो Okay. जस्टिफाइड नहीं था। और जहां तक बात है रीडिंग की, ये तो अब जो मैं आपको रीडिंग का होमवर्क दूंगा ना, आप वो करके आओ, मैं तभी देखूंगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। आज तो हाँ मैंने जी आपको सर। समझा दिया कि हाँ जी डिस्कशन लास्ट टाइम जब आप प्रिपेयर कर रहे थे अच्छे से नहीं होती थी, आपने ज्यादा हाँ जी रीडिंग सर। करने की कोशिश की, ये भी एक वजह हो सकती है, और आपने वो कैप कलेक्शन नहीं करी, ये भी एक हाँ वजह हो जी। सकती है। अदरवाइज स्पीकिंग में फिलहाल मैं आपको बैंड स्कोर दूंगा 6.5 से 7 के बीच। जो कमियां है, आपका प्रोनाउंसिएशन हार्श है, और आप बहुत रफ्तार पकड़ लेते हो, और आप ग्रामर की रेंज इस्तेमाल नहीं करते। ये 3 चीजें हैं जो ठीक कर लोगे तो 7 और 7.5 बैंड भी आपका आ सकता है स्पीकिंग में। Okay, okay sir. ठीक है ना? Sir, how I 6.5 can improve pronunciation and grammar की आप बोल रहे थे कि रेंज नहीं है, सेलिब्रिटीज को what? सुनो, सेलिब्रिटीज को सुनो डेली, अच्छे अच्छे Okay sir. सेलेब्स को सुनो, उनको इमिटेट करो, सुनो इमिटेट करो। पंजाबी हमें कैसे आई? सुन सुन के आई, हाँ जी सर। अपने परिवार को सुन सुन के, फिल्में देख देख के, आस पड़ोस को देख देख के, वहां से आपको पंजाबी आ गई। पंजाबी किसी ने सिखाई थोड़ी है आपको बैठ के, हाँ उसका जी। प्रोनाउंसिएशन किसने सिखाया थोड़ी है, फिर भी आता है और एक्यूरेट आता है। तो इंग्लिश कैसे आएगी? सुन सुन के आएगी। अब Yes. सुनोगे किसकी? आप अपने आसपास के लोगों की, उनकी खुद अच्छी नहीं है, हाँ जी। उनकी खुद अच्छी नहीं है, तो सेलिब्रिटी की सर सुनो ना। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ सत श्री ਬੋਲ ਰਹੀ अकाल, ਸੀ सत कि श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। कैसे हो? क्या भी हो जी? चाह सर भी आपकी बेटी बड़ी इंटेलिजेंट है।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਟ मैं ਓਨਲੀ समझ ਬਟ गया, मैं ਆਲਸੋ समझ ਈਦਰ गया, ਵਾਲੀ, मैं ਪਰ समझ गया। ਸਪੀਕਿੰਗ ਚ ਉਹ मतलब ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ जब ਹਾਂ? आपके पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा है तो आप ਹਾਂਜੀ सोच के अपनी ग्रामेटिकल रेंज को एडजस्ट कर लेते हो, बट वाइल ਹਾਂਜੀ स्पीकिंग डजंट रिफ्लेक्ट। यस सर, तो ਹਾਂਜੀ उसका ਉਹ एक ही मात्र तरीका है, engage more in communication with your ओके सर। friends, with your mentors, with people around you, जो कि पंजाब के माहौल में हो नहीं सकता। पीपल हाँ अराउंड जी। यू, मदर है, फादर है, भाई बहन है, उनसे तो बोल नहीं सकते, तो बचेगा कौन? यस आपके बैचमेट्स, जहां आप पढ़ ओके रहे हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, दे हैव द सेम गोल, then you can communicate every day, maybe on phone or maybe physically in front of each other, you can ओके communicate। but कोई भी चीज इंप्रूव करनी है, राइटिंग इंप्रूव खाली राइटिंग से नहीं होती, पढ़ना भी पड़ेगा अच्छा, तब अच्छा लिख पाओगे। तो स्पीकिंग खाली स्पीकिंग से इंप्रूव नहीं होती, सुनना पड़ेगा अच्छा, तब स्पीकिंग कर पाओगे। सो लिसन टू प्रियंका चोपड़ा, लिसन टू दीपिका पादुकोण, लिसन टू विराट कोहली, लिसन टू शाहरुख खान, लिसन टू द फॉरेन सेलिब्रिटीज। वो जैसे बोल रहे हैं उनको इमिटेट करो, उनके प्रोनाउंसिएशन को इमिटेट करो, उनके रेट ऑफ स्पीच को इमिटेट करो, उनसे वॉइस मॉड्यूलेशन को इमिटेट करो। वो धीरे धीरे करके आएगा, एक दो दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, एक महीना दो महीना करते रहो, वो चीज अपने आप न्यूट्रल हो जाएगी और वो चीज अपने आप स्टाइल में आ जाएगी। अच्छा, आपके पंजाब की ही है वो हरनाथ संधू, हाँ जी सर। वो 8-10 साल पहले कैसी थी? आती है ना उसकी पुरानी तस्वीरें या पुराना कम्युनिकेशन, यस सर, तो यस सर। उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो आज आप, हम्म। क्या उसने अपने आप को बना लिया, क्या उसने अपने कम्युनिकेशन को बना लिया? यस सर। तो अगर वो अपने आप को ट्रांसफर कम कर सकते हैं, व्हाई कांट यू? तो उसके लिए माहौल बदलना पड़ता है, उसके लिए अपना एक ऑडियो, हम सुन क्या रहे हैं और हमारी आंखें देख क्या रही हैं, दो चीजों पे बहुत काम करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव। अभी 6.5-7 है, आप 8 पे भी जा सकते हो, ये मेरा विश्वास है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत टैलेंट है आप में। एक छोटी सी, हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन की मार रही हो रीडिंग में, जिसकी वजह से Yes, आप sir. रह गया, पर अगर वो ना रहता, आप मेरे से कम्युनिकेट क्यों करते? तो Yes, sir. क्या पता इस डेस्टिनी में मेरे साथ कम्युनिकेट करना हो, हमारे साथ कुछ टाइम पढ़ना हो, और क्या पता उसकी वजह से जीवन को कोई नई दिशा मिलनी हो, तो हमें खुद नहीं पता होता कोई चीज क्यों होती है, उसकी वजह क्या होती है। समझ रहे हो? यस सर। तो और सर ਅੱਜ ਦੇ ਫਿਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 6.5 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? आज तो मैं 6.5 दे रहा हूँ। ओके सर। क्यों? भी इट मींस ग्रामेटिकल रेंज नहीं आई, ठीक है सर। जो आई वो ठीक बोली आपने, लेकिन बहुत सारी ग्रामर कंडीशनल सेंटेंस नहीं दिखे, पैसिव सेंटेंस बहुत ज्यादा नहीं दिखे। मैंने ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ बताया, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਲੂਐਂਸੀ ਨਾ टूट गई ਹੋਵੇ ਜਾਂ हो ग्रामेटिकल सकता मिस्टेक। है थोड़ा सा आप हाँ। हेजिटेट भी कर रहे थे कहीं कहीं बीच बीच में, जो एक हाँ जी। नेचुरल होता है ना, कि चेहरे की स्माइल भी बनी हुई है और हम अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं और वॉइस मॉड्यूलेट भी हो रही है, वो मिसिंग था। ओके सर। तो वो पे उस पे काम होना है। ਓਕੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੋਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ मैं ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ टेस्ट दे रहा हूं, आज का आपके पास सारा दिन है। रीडिंग है, उसके आंसर 1 से 40 एक पेज पे लिख लेना। लिसनिंग है, उसके आंसर 1 से 40 एक पेज पे लिख लेना। राइटिंग टास्क 1 टास्क 2 है, वो पेज पे लिखना। उन सारे पेजेस की पीडीएफ बनाना, मुझे भेज देना। उसके बाद मैं कल का टाइमिंग आपसे शेयर करूंगा कि कल क्लास कितने बजे होगी। फिर उसी क्लास में मैं आपकी रीडिंग का एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा क्या गलत है, क्यों गलत है। राइटिंग का एनालिसिस करूंगा, वो बताऊंगा क्या गलत है, क्यों गलत है। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। चलो, ओके खुशप्रीत, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। गॉड ब्लेस यू, यू हैव ब्राइट फ्यूचर एंड डोंट वरी, यू विल अचीव योर गोल एज सून एज पॉसिबल। ओके बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, बाय।